Hello guys, this is Hari from English classes and today I am going to share about past position. It means I am just talking about use of was and were. That where to use was and where to use were. I have already uploaded few videos related to present position and present emphatic. Definitely you will have seen and you will have watched those videos and you will have understood so many things related to those. Okay, so let's start to discuss here past position. तो सबसे पहले यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि पास्ट क्या होता है, पोजीशन क्या होता है. When action or incident which had been completed already, that is a past, but the position shows about somebody or something, that is a position. Just like I am a teacher means what am I am a teacher. So here it shows about present position, but I was a teacher. Okay, so what is showing? So it is showing about past position, that what was I was a teacher. So this is where we will try to understand. Now how will we identify the sentence that it should be in the form of past position or something else. Okay, so something should be there at the last of a sentence, just like tha, thi, the. Okay, if sentence ends with tha, thi, the, that sentence should be in the form of past position. But we have to take care one more thing, that there should not be main verb और principal verb. यानी कि वह सेंटेंस में किसी भी प्रकार का आपका मेन वर्ब नहीं होना चाहिए. अगर आपके सेंटेंस में मेन वर्ब आ रहा है तो वह सेंटेंस रॉन्ग होने वाला है. आई एम गोइंग टू शेयर टू सेंटेंसेस, जस्ट लाइक ट्राई टू अंडरस्टैंड. आई वॉज ईटिंग एंड आई वॉज अ बॉय. ओके, जस्ट सी. अगर मैं दो सेंटेंस के बारे में बात करता हूं, I was 18, right? And I was a boy. तो हम ये दोनों सेंटेंस से क्या समझते हैं कि I was 18 का मतलब होता है मैं खा रहा था, और I was a boy का मतलब मैं एक लड़का था. ठीक है, तो इसके अंत में भी मैं खा रहा था और मैं एक लड़का था. आप देख पा रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस के एंड पॉइंट पे आपका था से अंत हो रहा है. तो क्या आप यही समझेंगे कि आई वॉज ईटिंग जो स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस है, वो आपका पास्ट पोजीशन का है? नहीं, बिकॉज आई हैव सीन हियर दैट ईटिंग इज मैन वर्ब, और मैं पहले ही बता दिया कि सेंटेंस में आपका कहीं भी मैन वर्ब नहीं होना चाहिए. अगर मैन वर्ब आता है, प्रिंसिपल वर्ब आता है, तो वह सेंटेंस आपका पास्ट पोजीशन पे नहीं जाएगा. सिंपली इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, वॉज वर्ड यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करना. ऑब्जेक्ट में बहुत तरह का ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन के फॉर्म में रहेगा, एडजेक्टिव के फॉर्म में रहेगा, और भी कोई फॉर्म में रह सकता है. ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करते हैं. बट वी ऑल्सो हैव टू टेक ए वन थिंग, दैट इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर in the four format, just like positive, negative, interrogative and WH word. Okay, so this is this is good opportunity for you all, that this is the fourth structure that I'm just going to share, that I'm just going to teach. Okay guys, so take care. Now first of all I will tell you the past position means I'm just talking about positive. Okay, so see please, this is a positive. Okay, so positive shows affirmations. ये क्या शो करता है? affirmation means it is very simple sentence. ये बहुत ही सामान्य सेंटेंस होगा, बहुत ही आसान सेंटेंस होगा. ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस. अब what should be the structure of positive in the form of past position? Okay, तो simply okay, just see, subject plus was oblique were plus object. Okay, now how to identify the sentence? See, था, थी, थे. अब हम यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं कि हम सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पोजीशन और नॉट. सिंपली वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इफ सेंटेंस एंड्स विद था, थी, थे, बट वी हैव टू टेक केयर वन मोर थिंग, दैट देयर शुड नॉट बी अ प्रिंसिपल वर्ब और मैन वर्ब. इन दैट केस वी कैन आइडेंटिफाई दैट सेंटेंस शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पास्ट पोजीशन इफ subject, supporting verb or object should be there. Okay, then we will try to understand that structure or sentence should be in the form of past position. तो जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, मैं एक लड़का था, वह खुश थी, मेरा भाई पागल था. ठीक है, तुम मुंबई में था, मेरा भाई ऑफिस में था.
अनमोल खुश था। ओके, अनमोल खुश नहीं था। क्या अनमोल खुश था? ठीक है, अनमोल क्यों खुश था? अगर इस प्रकार का सेंटेंस को अगर आपको बोलना है तो आप इसी स्ट्रक्चर को यूज करेंगे जो मैं बताने जा रहा हूं, पास्ट पोजीशन। तो ये आपका पॉजिटिव स्ट्रक्चर है जिसमें सब्जेक्ट रहेगा, वाज वर रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? था, थी, थे रहेगा। मैंने पहले भी यहां से बताया कि अगर आई वाज ईटिंग रहेगा तो मैं खा रहा था, हो गया। आई वाज अ बॉय मतलब मैं एक लड़का था। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं, जस्ट लाइक सी अंडरस्टैंड। देखिए, जैसे वह लड़का था, ठीक है, वह लड़का था, तो वह का इंग्लिश क्या हुआ? ही। अभी के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा। अब लड़का का इंग्लिश क्या होगा? बॉय होगा। ठीक है, ही वॉज बॉय, वह एक लड़का था। जैसे देखते हैं, मैं प्यासा था। ठीक है, मैं प्यासा था का क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा? वॉज। अब प्यासा का क्या होगा? थर्स्टी। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस को देखता हूं, वे लोग खुश थे। ठीक है, तो वे लोग का क्या होगा? दे के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा। अब खुश का क्या होता है? हैप्पी। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं कि हम वॉज का यूज कहाँ पे करेंगे और वर का यूज कहाँ करेंगे। सिंपली मुझे पता है तो मैं बना दिया, लेकिन आप कैसे बनाएंगे? हाउ टू मेक द सेंटेंस एंड हाउ टू यूज was and were. Okay, so simply we have to take care the subject. According to subject we just have to apply the supporting verb. I'm just going to tell that means in which places should be used. Okay, was and were. Let's see, अगर आपका सेंटेंस में, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, आप देख चुके होंगे पहले से। जैसे अगर आई हो, ही हो, सी हो, इट हो, नेम हो, या कोई भी प्रकार का सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उसके साथ वॉज लगाएंगे। और अगर किसी भी सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर वी होगा, यू होगा, दे होगा, या कोई भी प्रकार का प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो उसके प्लेस पे आप वर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और एक बात और ध्यान देंगे, एसएसपीपी आप समझने का प्रयास करें कि एसएसपीपी होता क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे अभी आप यहाँ पे क्या समझे कि ही आपका क्या है? सिंगुलर है, तो आपका वॉज क्या है? सिंगुलर है। आई देखिए सिंगुलर है, और वॉज भी क्या है? आपका सिंगुलर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दे क्या है? प्लूरल है, और वर क्या है? प्लूरल है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। लेकिन एक बात और ध्यान देंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा कभी कभी, तो वहां पे भी प्लूरल फॉर्म बनाते हैं अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में हो। जैसे हम लोग विद्यार्थी थे, ठीक है, अगर मैं बात करता हूं हम लोग विद्यार्थी थे, तो इस प्रकार का सेंटेंस में क्या होगा? वी होगा, वी के साथ क्या लगेगा? वर लगेगा, वी वर। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? स्टूडेंट्स, राइट, स्टूडेंट्स, तो वी है आपका प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब लग गया, वी वर। अब देखिए अगर ये प्लूरल फॉर्म में है तो स्टूडेंट्स भी आपका प्लूरल फॉर्म में ही जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं वी वर स्टूडेंट, तो वो आपका रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में आपका सब्जेक्ट है, तो आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल फॉर्म में ही होगा। तो इस बात को ध्यान देंगे। मैंने बता दिया कि was का यूज कहाँ पे होगा, वर का यूज कहाँ होगा। मैंने यह भी बताया कि एसएसपीपी अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लेकिन कभी कभी मिस्टेक क्या होता है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब एडजेक्टिव रहते हैं, अगर मान लीजिए सेंटेंस में एडजेक्टिव हो, जैसे देखिए दे वर हैप्पी, तो अगर आप सोचेंगे कि सेंटेंस को आप ऐसे बना देंगे, हैप्पी को अगर आप हैप्पीज कर देंगे, ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि ये प्लूरल है तो इसको भी प्लूरल बना देते हैं। अगर आप इसको प्लूरल बनाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल फॉर्म में होता नहीं है। आप एडजेक्टिव को प्लूरल नहीं बना देंगे। सैड, तो सैड को कैसे बनाएंगे? फैट, तो क्या फैट्स कर देंगे? हैप्पी, तो क्या हैप्पीज कर देंगे? नहीं, ये कभी होने वाला नहीं है, ये आपका प्लूरल फॉर्म में जाएगा ही नहीं। ओके, तो डेफिनेटली यू वुड हैव सीन दिस थिंग। So now we is going to talk about the negative structure of past position. Okay, so see please. देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, सिंपली ध्यान देंगे कि आपका सब्जेक्ट होगा और was ऑब्लिक वर होगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, यानी कि ये सारा काम करना पड़ेगा। ठीक है,
तो how to make the structure, how to make the sentence into negative from positive sentences. Okay, so take care that not should be used after supporting verb, then definitely sentences or sentence should be changed in the form of negative. So see, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, आपका ये वॉज वर्ब हो गया, उसके बाद नॉट लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल को लेकर देखता हूं, जैसे मैं प्यासा नहीं था, तो मैं प्यासा नहीं था क्या होगा, आई, उसके बाद क्या होगा, वॉज, उसके क्या बाद होगा, नॉट, और उसके बाद थ्रस्टी, राइट, आई वॉज नॉट थ्रस्टी, वह भूखी नहीं थी, तो वह भूखी नहीं तो क्या होगा, सी वॉज नॉट हंग्री, राइट, सी वॉज नॉट हंग्री। ओके, अगर मैं बात करता हूं मेरे पिताजी अस्पताल में नहीं थे, तो मेरे पिताजी अस्पताल में नहीं थे तो क्या होगा, माई फादर, अब माई फादर के बाद क्या होगा, वॉज के बाद क्या होगा, नॉट। अब देखिए अस्पताल का इंग्लिश क्या होता है, हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल के पहले एक प्रीपोजिशन लगेगा जिसका मतलब होता है में, तो माई फादर वॉज नॉट इन द हॉस्पिटल, राइट, इन द हॉस्पिटल। अब मैं बात करता हूं कि अनमोल, ठीक है, अनमोल खुश नहीं था, तो अनमोल खुश नहीं था क्या होगा, अनमोल वॉज, ठीक है, अनमोल वॉज नॉट हैप्पी, अनमोल वॉज नॉट हैप्पी। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका सपोर्टिंग वर्ब है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से माई फादर आपका सब्जेक्ट था, वॉज आपका सपोर्टिंग वर्ब था, नॉट आपका नेगेटिव वर्ड था, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका आर्टिकल्स है और ये आपका नाउन है। तो इस प्रकार से आपने देखा नेगेटिव स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट यूज करना था, वॉज वर्ब यूज करना था, नॉट यूज करना था, ऑब्जेक्ट यूज करना था। अब मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रहा हूं, वी आर जस्ट मूविंग फॉर द नेक्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज इंट्रोगेटिव, एंड हाउ टू मेक द इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, how to make the negative, sorry, how to make interrogative sentence. So simply we just have to take a one more thing that supporting verb should be used at the first of a sentence, supporting verb should be used in the beginning of a sentence, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले सपोर्टिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक, उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा हम उसे करते हैं, ठीक है। तो प्लीज यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट और यू मे राइट डाउन, ओके। So definitely you will have understand these things in proper way. So now it's going to move for the next structure that is interrogative. Okay guys, so see please, interrogative sentence, interrogative, ठीक है। और ये जो आपका है वो आपका WH वर्ड है, ठीक है। हम दोनों स्ट्रक्चर को एक साथ बताने वाला हूं, ठीक है। तो गाइस please see here, this is interrogative and this is WH word, okay, तो both the structure is going to take at the same places, okay, so see please, ये आपका was और ये आपका were है, ठीक है, जो आपका सपोर्टिंग वर्ब। मैंने क्या बताया कि सेंटेंस के सबसे पहले सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा, उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। और इसमें क्या करना है, सबसे पहले आप WH वर्ड लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप was और were का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, और देन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देन हाउ विल वी अंडरस्टैंड दिस स्ट्रक्चर दैट इज इंट्रोगेटिव एंड दैट वन WH, ओके। सो टेक केयर, सबसे पहले was were है, तो यहाँ पे इसका जो हिंदी होगा वो क्या होगा, प्लस सब्जेक्ट डैश 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 था, थी, थे, गॉट इट। अब इस पे क्या होगा कि WH वर्ड होता क्या है, जनरली देखिए कि WH वर्ड, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोई भी वर्ड जो WH से स्टार्ट होता है उसी को WH फैमिली में लाते हैं, जैसे क्या है, व्हाट है, विच है, व्हेन है, व्हाई है, हु है, हुम है, हुज है, ठीक है। तो ये इतने सारे जो वर्ड्स को देखिए, सबके स्टार्टिंग में क्या, WH 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 WH, तो इसी को कहते हैं WH वर्ड्स फैमिली। तो सबसे पहले इसी वर्ड्स को यहाँ पे यूज करेंगे। अब एक बात और समझना है कि बहुत लोगों के पास कंफ्यूजन होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH वर्ड सेंटेंस को मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ओके। मींस देयर आर सो मेनी गाइस दिस डोंट नो हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस that is in interrogative sentence or in WH word, okay। So simply we have to understand that suppose sentence is started
सपोज सेंटेंस स्टार्टेड विथ इंट्रोगेटिव, सॉरी, सपोज सेंटेंस इज स्टार्टेड विथ सपोर्टिंग वर्ब, then the structure or the sentence should be in the form of interrogative. But if the sentence is started with okay your WH word, so in that condition we will try to understand the structure is or sentence is in the form of WH word. इसमें क्या होता है कि क्या से क्वेश्चन होता है, क्या वह अच्छा था, क्या मैं गरीब था, क्या वह पुअर था, क्या वह ईमानदार था, क्या मैं तेज था, इस प्रकार का सेंटेंस। और यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या था, तुम क्या था, ठीक है, वह कहाँ था, मेरा भाई कहाँ था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम WH वर्ड के फॉर्मेशन पे लाते हैं, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, क्या मैं गरीब था, ठीक है, क्या मैं गरीब था, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है क्या वह चालाक था, ठीक है, क्या वह चालाक था। तीसरा सेंटेंस है क्या हम लोग दुष्ट थे। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे लोग ईमानदार थे। अब इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो जो आपका क्या है स्टार्टिंग में तो वॉज वॉर लगेगा, अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमें यूज करना है। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आई, तो आई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा वॉज आई। अब गरीब का क्या होता है भाई, पुअर होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, चालाक था, तो इस पे भी क्या होगा, वॉज ही। अब चालाक का क्या होता है, क्लेवर, तो यहाँ पे ये वर्ड यूज कीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या हम लोग दुष्ट थे, तो हम लोग का इंग्लिश होता है वी, तो वी के साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, ठीक है। हेलो साइलेंस प्लीज, वर वी। अब यहाँ पे देखिए दुष्ट है, तो दुष्ट का क्या होता है, विकेड होता है, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे लोग ईमानदार थे, तो क्या वे लोग ईमानदार थे, तो सबसे पहले हम क्या लगेंगे, वर लगाएंगे। और वर के बाद क्या लगेगा, वे लोग, तो वे लोग का इंग्लिश क्या होता है, दे, वर दे। उसके बाद ईमानदार है, तो ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब हम फाइनली जो मेरा WH वर्ड स्ट्रक्चर है, इसको हम देखते हैं कि इसको हम फॉर्मेशन कैसे करते हैं, हाउ टू मेक द सेंटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ WH वर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्चुअली दीज आर द स्ट्रक्चर व्हिच आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चंस व्हेनेवर वी जस्ट डू कन्वर्सेशन विद समबडी एल्स। इन दैट कंडीशंस वी जस्ट नीड टू आस्क अ क्वेश्चंस, ओके। सो दिस स्ट्रक्चर विल जस्ट हेल्प अस टू आस्क अ क्वेश्चंस, ओके। सो सी प्लीज नाउ, जैसे वह कहाँ था, ठीक है, एक सेंटेंस है वह कहाँ था, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है मैं यहाँ क्यों, ठीक है, मैं यहाँ क्यों था, ठीक है, क्यों था नहीं, मैं यहाँ क्यों था, राइट। अब दूसरा सेंटेंस है वे लोग सरिया में कहाँ थे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोग क्या थे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इस जगह पे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, इस जगह पे क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। यानी कि मैं जितने जगह भी सर्कल किया हूँ, जहाँ पे मैं सर्कल दिया हूँ, वहां से ये क्वेश्चन का अराइज हो रहा है। और इस प्लेस पे क्या था, इंट्रोगेटिव में क्या आपका स्टार्टिंग में था, यानी कि क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग से ही पूछा जा रहा है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है वो आपको सेंटेंस के जस्ट मिड पॉइंट पे है। तो इसको हम ट्रांसलेट किससे करेंगे, हाउ टू ट्रांसलेट दीज आर द सेंटेंसेस। सो सी प्लीज, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर वी जस्ट हैव टू अप्लाई, सिंपली वी जस्ट हैव टू मेक इट, ओके। सो सी, अब देखते हैं कि वह कहाँ था। तो कहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर होता है। तो सबसे पहले आप वेयर लगा दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेयर के बाद वॉज और वर लगेगा, तो यहाँ पे होगा वेयर वॉज, ठीक है। अब देखिए वह का इंग्लिश क्या होता है, ही होता है, तो ही लगाइए, वेयर वॉज ही, ओके। नाउ मैं यहाँ क्यों था, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है। और वाई के साथ क्या लगेगा, वॉज लगेगा। तो अगर इस प्रकार से बनाएंगे तो रॉन्ग होने वाला है, क्योंकि वाई के साथ वॉज नहीं, इसके अनुसार से हम सपोर्टिव वर्ब को इस्तेमाल नहीं करते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे आई, इसलिए मैं यहाँ पे वॉज लाया, वाई वॉज आई हियर। अगर मैं बात करता हूँ वे लोग सरिया में कहाँ थे, वेयर के बाद क्या होगा, वर लगेगा, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो वेयर वर दे, ठीक है।
अब यहाँ पे लगेगा इन सारिया, वेयर वर दे इन सारिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या थे, तो क्या का इंग्लिश क्या होगा, व्हाट होगा, और व्हाट के बाद क्या होगा, वर होगा। वर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोग है, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता, व्हाट वर वी। अब यहाँ पे होगा व्हाट वर वी। तो as this way we have seen here and I have just given all the explanations related to positive, negative, interrogative and WH word of these past positions. Okay guys, so definitely you will have understood these videos and this lecture, so definitely it will be just good for you all. So please subscribe my channel and press the bell icon so that you will get more update videos. So take care and just thank you.